Hello class, today I am going to teach you your book Beehive's poem A Legend of Northland part 2nd. In a previous class, I have already explained you that this poem is a kind of ballad, and ballad is a poem narrating a story in a short stanza. There are total 16 stanza of four lines, and uh, it is a historical stories which was passed from one generation to the next generation, and the story is of the Northland area, which is near the North Pole. Okay, and I have already explained you the story that Saint Peter was Saint Peter um, used to live in a world and went around giving religious lecture to the people, just like all saints. And then an incident happened, and he was very hungry as he was wandering all the day. So he at last he went to a cottage where a woman was making bakes, and she was baking the cakes in the fireplace. As the Saint Peter had not eaten anything the entire day, he was very hungry and feeling weak. So he went to this woman and who was baking cakes, and he asked for the cake out of the many cakes that she had baked. And in the last eight stanza I have already explained you that the little miser woman thought that the cake was too big to be given away, so she started making another smaller cake. When she looked at that cake, she again felt that it was as big as the previous one. Again she was not ready to give them smaller cake to Saint Peter. मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है ये बैलेड है, 16 स्टेंजर्स हैं, 4 लाइंस के हैं, और आपको ये एक हिस्टोरिकल कहानी बताते हैं जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास आउट होती है. देन एक स्टोरी मैंने आपको नरेट की थी कि सेंट पीटर जब पूरे रिलीजियस लेक्चर देकर जब वो घूमते हैं, उन्हें बहुत भूख लगती है, फिर वो एक कुटिया में जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं. वहाँ पर एक वुमेन है, वो केक को बेक करती है, उससे केक मांगते हैं, और वो जो वुमेन होती है वो जो भी केक बनाती है उसको ऐसा लगता है कि केक बहुत बड़ा है और वो उसको देना नहीं चाहती. ओके, now come to this class, and we started from stanza 9. In the stanza 9, the third time she took a very small amount of dough and rolled it. The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on the fact that she rolled the dough and made it very thin like a vapor and baked it, but she was so greedy that she could not give that thin piece of bread to the saint. अब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, दोनों टाइम के केक को वो बोलती नहीं बड़ा है. थर्ड टाइम फिर वो एक छोटा सा डो लेती है, जिससे वो केक बनाती है, उसका डो लेती है और उसको बहुत पतला उसको बेलती है. जैसे वेपर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, जिस तरह से बिल्कुल पतला, उस तरह से उसको बेलती है और फिर उसको बेक करती है. उसको ऐसा लगता है, और उसके बावजूद भी उसको ये लगता है, इतनी लालची वो रहती है वुमन, कि उसको लगता है कि नहीं, ये जो पीस है ये भी सेंट पीटर को वो देना नहीं चाहती, ये भी उसको बड़ा लगता है. Now come to the stanza 10. The woman respond that when she ate the cake, she felt that they were very small. But if she had to give them to someone, she felt that they were too big to be given away. She put all the cakes on the shelf of her kitchen, and she did not give any cake to Saint Peter. फिर वो औरत जो रहती है वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि जब वो खुद खाती है तो उसको हर एक केक छोटा लगता है, लेकिन जब किसी को देने की बारी आती है तो उसको वही केक बहुत बड़े लगने लगते हैं. और वो क्या करती है कि अपने जितने केक उसने बेक किए होते हैं वो सारे केक को वो अपने किचन की शेल्फ में रख देती है और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं देती है. Now come to the stanza 11. Saint Peter become angry. He was very hungry. He was feeling very weak, and the selfish woman was not ready to give him even a small cake. This behavior of the greedy woman angered the saint. होता ये है कि सेंट पीटर जो है वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं. वो बहुत भूखे थे, बहुत वीकनेस उनको महसूस हो रही थी, और वो औरत इतनी ज़्यादा सेल्फिश थी कि वो उनको छोटा सा एक केक देने के लिए भी वो रेडी नहीं थी, और उसके इस बिहेव से सेंट पीटर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं. Now stanza 12. Saint Peter cursed the woman and said that she was very selfish. She did not deserve to live like a human being. He added that God had given her food, shelter, fire to keep warm, but she had become selfish for all the resources she had. She did not want to share them
विद एनीबडी। इसके अंदर स्टैंजा 12 के अंदर वो ये कहते हैं कि जो सेंट पीटर है वो उसको मतलब श्राप देने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये औरत बहुत ज़्यादा स्वार्थी है और ये डिज़र्व नहीं करती कि इसको मानव का जीवन मिले। और वो भगवान, वो कहते हैं कि भगवान ने इसको हर चीज़ दी, इसको खाना दिया, रहने के लिए छत दी, और इसको गर्म रहने के लिए फायर की भी व्यवस्था है इसके पास, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि ये अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो साधन हैं, उसको वो किसी दूसरे के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती। Now, stanza 13. Saint Peter cursed the woman that hence she would become a bird because she did not deserve the human form. She shall become a bird, and just like birds build their houses by boring into the wood and collect very little food by working hard the entire day. Similarly, she would also work hard in the dry wood all day and get little food and make a small place for herself to live in. फिर वो उसको श्राप देते हैं और श्राप में उसको ये बोलते हैं कि ये ना पक्षी बन जाए, क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म के लायक ही नहीं है। और ये बोलते हैं, वो एक्सक्यूज़ क्या देते हैं कि क्यों ये पक्षी बन जाए, क्योंकि पक्षी सारा दिन भटकते हैं और सारा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद उनको थोड़ा सा मिलता है खाने के लिए, और वो बहुत छोटी सी जगह में अपना घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं। तो उसको शापित करते हैं कि जैसे वो पक्षी बड़ा हार्डशिप वाली लाइफ बर्ड्स की होती है, तो जैसे पक्षी की हार्डशिप वाली लाइफ है, वैसी हार्डशिप वाली लाइफ इस औरत की भी बन जाए। Now come to the stanza 14. As soon as Saint Peter cursed the woman, she did not get a chance to speak for herself, because that very moment she flew up to the roof through the chimney and flew out in the form of a bird. Saint Peter's curse had converted the woman into a bird. और जैसे ही सेंट पीटर उसको श्रापित करते हैं तो वो जो वुमन होती है वो बर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो रास्ता होता है वहाँ चिमनी से की तरफ से जो रास्ता निकलता है वहाँ से उड़ के फिर वो चली जाती है। Stanza 15. When the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red colored cap on her head. This cap was there on the bird's head also, but the woman's remaining cloth had burned and turned black in color just like coal. और जब वो बर्ड के अंदर जब वो लेडी कन्वर्ट होती है तो उसने एक रेड कलर का कैप लगाया हुआ था, तो वो कैप उस बर्ड के भी फॉर्म के अंदर वो रेड कैप उसके रहती है, और बाकी जो उसके रिमेनिंग क्लॉथ्स होते हैं उस वुमन के, वो क्लॉथ जो होते हैं वो जल जाते हैं, और उसका जो कलर होता है जैसे कोयला होता है ब्लैक कलर का, उसमें वो टर्न हो जाता है। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा. People who live in the countryside, even the small children who go to school, see this kind of bird in the woods. They see that she stay there all day and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. Whenever any child sees this kind of bird, then his elder tell him this story. They say that the bird used to be a woman earlier. She was very greedy, and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that should not be greedy. और लास्ट वाले स्टेंजा के अंदर पूरा कंक्लूजन है, पूरा स्टोरी को एक्सप्लेन करके क्या आपको सीख मिलती है, क्या टीचिंग है इस पोएम की, वो इसके अंदर स्टेंजा 16 में है। इसके अंदर जो भी लोग वहाँ पर उस कंट्री साइड के अंदर रहते थे, इवन जो स्मॉल बच्चे जो स्कूल जाते थे छोटे छोटे, वो जब भी उस चिड़िया को देखते थे तो वो जो चिड़िया रहती थी वो हमेशा वुड अपनी बीक से वुड को पीक करती रहती थी उसको, और वो बड़ी मुश्किल से अपना फूड कलेक्ट करती थी। और जब कभी बच्चे उस चिड़िया को देखते थे तो उनके जो एल्डर होते थे वो उन बच्चों को स्टोरी बताते थे कि ये जो चिड़िया है ये कभी एक औरत हुआ करती थी, और वो इतनी ज़्यादा लालची थी कि उसको सेंट पीटर ने श्राप दिया और उसके बाद वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई। और वो साथ में अपने बच्चों को ये भी सीख देते हैं कि उन्हें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल 16 स्टेंजास. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर बुक, यू कैन सी इन दैट पेज. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन और इन द एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी. आई विल ट्राई टू सेंड द नोट्स to you tomorrow. Till then, goodbye.